हाँ एरिना, स्टार्ट करते हैं। पहले वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देखेंगे, 1 मार्क्स 2 मार्क्स वाले, उसके बाद सीधे फिर 3 से 4 फिर 5 की ओर चलेंगे। स्टार्ट करिए एरिना, क्वेश्चन नंबर 1। To flow current in a conducting wire, how much charges is present in it? On flowing current through the conducting wire, charges become zero. बिल्कुल सही बात है। अगर किसी कंडक्टिंग वायर से अगर करंट फ्लो होती है तो याद रखिएगा उस कंडक्टिंग वायर पे नेट चार्ज जीरो हुआ करता है, क्योंकि चार्ज कहीं पर रुकता नहीं है और चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होगा, मतलब नेट चार्ज जीरो होगा। समझ में आया? यस सर। चलिए Yes, नेक्स्ट sir. क्वेश्चन। Why meter bridge is known by these name? मीटर ब्रिज Because को in एक हाँ, मीटर ब्रिज का नाम मीटर ब्रिज क्यों है? Because in meter bridge, a wire of 1 meter length is used. डन। Two bulbs are marked as 25 watt and 100 watt. Whose resistance will be more? देखिए बल्ब 25 वाट और 100 वाट के हैं। अगर सेम वोल्टेज पे अप्लाई करते हो बच्चों तो P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो रेजिस्टेंस पूछा गया तो रेजिस्टेंस इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी। तो जिसकी पावर कम होगी उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो बताइए किसकी पावर कम है? 25 वाट की। तो रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा? 25 वाट वाले का। समझ में Yes, आया? sir. यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट। What do you mean by electric power? Write its unit. In any electrical circuit, the rate of energy decay is called as power. Its unit is watt. On which factor relaxation time depend on? It depends on nature of the material of the conductor. यस नेक्स्ट। Why there is internal resistance in a cell? Because inside the cell, the motion of ions gets obstacled by the collision of electrolytes molecules. ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट के मॉलिक्यूल से जो आयन चला करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस होते हैं, चार्जेस जो होते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस, वो इलेक्ट्रोलाइट के आयन से ही टकराते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के मॉलिक्यूल से टकराते हैं, इसलिए रेजिस्टेंस आता है। नेक्स्ट। Why wire of meter bridge is not made of copper wire? Since the resistance of copper wire is very less and its temperature coefficient is more, therefore it is not used in meter bridge. यस, तो ये टेम्परेचर सेंसिटिव होता है बिकॉज कॉपर वायर का अल्फा बहुत ज़्यादा होता है। तो हमको ऐसा वे चाहिए पड़ता है मटेरियल जिसका अल्फा कम हो। तो हम किसका यूज़ करते हैं? कॉन्स्टेंटन का या मैग्नाइन का। डन। Done, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। What is current? Write its unit. The electric current is defined as the rate of flow of charge through any section of a conductor. Electric current is equal to total charge flowing upon time taken. I is equal to Q by T. The SI unit of electric current is ampere. ठीक है मानसी, Yes, sir. चलिए पढ़िए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2। Is electric current a scalar or a vector quantity? Give reason. Electric current is a scalar quantity. This is because laws of ordinary algebra are used to add electric current and laws of vector addition are not applied for addition of electric current. यस, ये एल्जेब्रिकली ऐड होती है, इस वजह से एक स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट। Define current density. Is it scalar or vector? Write its unit. Current density at a point in a conductor is defined as the amount of current flowing per unit area of the conductor held perpendicular to the flow of current. बच्चों करंट डेंसिटी की डेफिनेशन लिख लीजिए। करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट, तो करंट डेंसिटी उस पॉइंट पे होती है अगर हम करंट की डायरेक्शन को एरिया के परपेंडिकुलर रखते हैं, उस पॉइंट पर एरिया के परपेंडिकुलर रखते हैं। At a point, current density at a point in a conductor is defined as the amount of current flowing per unit area of the conductor, provided that the area is perpendicular to the flow of current. जो एरिया हो, सर इसको एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। देखिए, current density at a point in a conductor is defined as the amount of current flowing per unit area of the conductor held perpendicular to the flow of current. करंट डेंसिटी जो होती है वो अमाउंट करंट पर यूनिट एरिया है, बट शर्त ये है कि जो एरिया होना चाहिए वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। जो एरिया होना चाहिए
वो परपेंडिकुलर होना चाहिए किसके, करंट की डायरेक्शन ऑफ करंट की, ठीक है। यस सर। तो आ I गए इज सर। इक्वल J इक्वल्स टू I अपॉन A, लिखो J इक्वल्स टू I अपॉन A। सो I इक्वल्स टू J डॉट A, बिकॉज करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्लियर। यस सर। करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो J इक्वल्स टू I अपॉन A, करंट I इक्वल्स टू J डॉट A। सो I इक्वल्स टू J A cos थीटा, नोट Yes, करो sir. I इक्वल्स टू J A cos थीटा। समझ में आया? यस सर, आ गया। ओके चलिए, सो ये हो गया करंट डेंसिटी कंप्लीट। बच्चों ये नोट्स आपको ग्रुप में मैं डाल दूंगा, तो इससे पढ़ भी लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा पावरफुल एकदम। अभी चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। यस, पढ़िए मानसी। Current density J is equals to current I upon area S और J is equals to I upon S। सर I upon A भी लिख सकते हैं हाँ ना आई सर, अपॉन ए मतलब भी, हाँ हाँ एस surface मतलब सरफेस एरिया, ठीक है। आई अपॉन ए भी लिख Yes. दो, कोई दिक्कत नहीं है। current density is a vector quantity। हाँ बच्चों याद रखना, जे एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो जे वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर होती है। द एसआई यूनिट करंट डेंसिटी इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। डन। Yes sir। नेक्स्ट। What is drift velocity? What is its values? Drift velocity is defined as the average velocity with which the velocity free electrons with which they get drifted towards the positive terminal of the conductor under the influence of the external electric field। इट्स वैल्यू इज 10 टू द पावर -5 मीटर पर सेकेंड। बच्चों एक सेकंड बस। Yes sir। चलिए, हाँ तो बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन पढ़ी अपन ने। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी बाय विच विद विच द फ्री इलेक्ट्रॉन, ये वेलोसिटी नहीं है यहाँ पे, विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन विच दे गेट ड्रिफ्टेड टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है लगभग 10 की पावर -5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर है बच्चों? Yes, sir. चलिए आगे पढ़िए। Yes, मानसी sir. Yes sir। पढ़िए। Is Ohm's law applicable to all conductors? Write conditions for its applicability, or write the condition or under which Ohm's law is not obeyed। No, Ohm's law is not applicable for non-ohmic conductors. Example: conductor diode, discharge tube, etc. It is valid only when there is no change in physical condition of the conductor, that is temperature, length or mechanical strain, etc. हाँ तो ये है कंडीशन ओम्स लॉ लगने की, और ऊपर जो है सारे कंडक्टर पे एप्लीकेबल नहीं होता है, ये केवल मेटेलिक कंडक्टर या ओमिक कंडक्टर पर ही लगता है। ठीक ना, ये डायोड, डिस्चार्ज ट्यूब, ट्रांजिस्टर, ट्रायोड वॉल्व, सेमीकंडक्टर, इन पे ओम्स लॉ नहीं लगता है। चलिए नेक्स्ट पढ़िए, क्वेश्चन 6। Define specific resistance or resistivity. Write its unit and dimensional formula. Specific resistance or resistivity is numerically equal to the resistance offered by a conductor or unit length and unit cross-sectional area. Its unit is ohm meter. It depends upon temperature. The dimensional formula of specific resistance is meter L cube T minus 3 A minus 2। हाँ मीटर नहीं बेटा, एम, एम मतलब मास के लिए होता है, एल होता है लेंथ के लिए। चलिए देखिए, आर इक्वल टू रेजिस्टेंस रो एल अपॉन ए, तो लेंथ 1 कर दो, एरिया 1 कर दो, तो मतलब वायर का रेजिस्टेंस जिसकी लेंथ 1 मीटर और एरिया 1 मीटर हो, उसकी जो रेजिस्टिविटी कहलाती है वो कहलाती है अपनी कितनी,
रो के इक्वल, रेजिस्टिविटी इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर हैविंग लेंथ 1 मीटर, एरिया 1 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। If you are given two wires of same material having same length but different diameters, then which with higher resistance and which will have higher specific resistance? The thin wire having less diameter will have higher resistance than that of thicker one, as R is directly proportional to 1 upon A. या आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, तो जिसका एरिया कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। नेक्स्ट पढ़िए। Both wires will have same specific resistance as they are made of same material, and specific resistance is characteristic of the material of wire. Exactly. Specific resistance is the characteristics of the material of the wire. Next question. It is easier to start motor car during summer rather than in winter. Why? The internal resistance of the battery during summer is less as compared to winter. Therefore, more current can be drawn from the battery. Exactly. गर्मियों के समय में टेम्परेचर ज़्यादा होता है बच्चों, और टेम्परेचर ज़्यादा होने से याद रखना कि इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाता है, तो गाड़ी ज़्यादा करंट फ्लो होती है, इससे ईजी होता है गाड़ी को स्टार्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए 9। When a high power heater is connected to mains, bulb become dim. Why? All electrical appliances are connected in parallel at home. Then when power heater is used, very high current passes through it. So potential difference falls on wires connected through mains. V is equals to E minus IR, which results in decreasing intensity of bulbs used in circuit. Yes, तो देखिए फॉर्मूला होता है बच्चों V इक्वल टू ई माइनस आई आर। जब आप कोई हाई पावर अप्लायंस यूज़ करते हो तो याद रखना हमेशा उसमें करंट ज़्यादा जाती है हाई पावर अप्लायंस में, तो करंट जाने से ये जो आई आर जाएगा ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि जो आउटपुट वोल्टेज होता है V होता है ई माइनस आई आर हुआ करता है। तो अगर आपका I बढ़ेगा तो आई आर ड्रॉप ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो जो एक्सटर्नल सर्किट को जो वोल्टेज मिलेगा वो कम मिलेगा, इसकी वजह से बल्ब बाकी सर्किट के डिम हो जाते हैं। आया समझ में श्रुति, अरीना, मानसी? Yes, sir, आ गया। चलिए श्रुति पढ़िए। व्हाट डू यू मेजर? What do you measure by meter bridge? When is its sensitivity maximum? हाँ, Answer. Resistances are measured by meter bridge. Sensitivity of meter bridge is maximum when the null point is obtained at the center of wire. Moreover, all the resistances must be of same order. हाँ, तो अच्छी सेंसिटिविटी तब मिलती है जब नल पॉइंट आपको बीच में मिलता है, और अब मैंने बताया भी था कि मीटर ब्रिज में अच्छी सेंसिटिविटी के लिए और व्हीट स्टोन ब्रिज में अच्छी सेंसिटिविटी के लिए जो चारों रेजिस्टेंस हुआ करते हैं वो लगभग सेम ऑर्डर के ले लो, ऐसा नहीं कि 1 किलो ओम का ले लो तो 1 मेगा ओम को ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन श्रुति। What is the wire of a meter bridge made up of? The wire of meter bridge is made up of manganese or constantan because it has low temperature coefficient of resistance and high specific resistance. Yes. Next. How can the sensitivity of potentiometer be increased? The sensitivity of the potentiometer will be more if the potential gradient is less. For this, first, voltage potential should be less but more than the EMF of E. Second, the length of potentiometer should be large. या तो V should be less but more than the EMF of E. V should be less but more than the EMF of E. मतलब जो आप ड्राइवर सेल लगाते हो बच्चों, ये जो आप ड्राइवर सेल यूज़ करते हो तो ड्राइवर सेल कम से कम होना चाहिए, कम से कम वोल्टेज का ड्राइवर सेल दोगे। जैसे कि मान लो आपको यहाँ पे टेस्टिंग सेल आपके पास मान लो 3 वोल्ट का नापना है, तो कोशिश करो कि ड्राइवर सेल आपका 4 वोल्ट का हो या 5 वोल्ट का हो। ऐसा नहीं कि आपको नापना है टेस्टिंग सेल 3 वोल्ट का और आपने यहाँ पे लगा दिया है 100 वोल्ट। समझ में आया बेटा? Yes, sir. हाँ सर, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? बेटा, पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब है पर यूनिट लेंथ पे ड्रॉप होने वाला वोल्टेज। समझ गए ना? पर यूनिट लेंथ पे ड्रॉप होने वाला वोल्टेज होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो आप देखिए Yes. आपके पास जो पोटेंशियोमीटर है, अगर कम लेंथ पे ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा तो छोटे छोटे वोल्टेज को आप नहीं नाप पाओगे।
मान लो आपके पास इतनी लेंथ है और इतनी लेंथ में मान लो आपके पास 100 वोल्ट ड्रॉप हो गया, समझ गए ना। तो इतने में कितना होगा, इतने में 10, इतने में 20, 30, 40 अप टू 100 तक। अब मान लो आपको आ गया 0.2 वोल्ट नापने को, तो देखो कितनी दिक्कत होगी, क्योंकि इतने में 10 वोल्ट गया है। अब जब इतने में 10 वोल्ट गया है तो इसके 10 पार्ट करोगे तो 1 वोल्ट आएगा। अब एक पार्ट का फिर 2 पार्ट करोगे तो 0.2 मिलेगा, है ना। होगी ना Yes, मुश्किल, sir. है ना। Yes, sir. ये मुश्किल क्यों हो रही है, ये इसलिए हो रही है क्योंकि आपका वोल्टेज पर यूनिट लेंथ में भरा हुआ है। तो आप एक काम करो, या तो लेंथ बड़ी कर दो, लेंथ बड़ी करोगे तो 1 वोल्ट जो है ज़्यादा फैल जाएगा, तो अब आप 0.1 बड़े आराम से नाप पाओगे। समझ में आया। Yes, sir. Yes, sir. तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो अगर आपको सेंसिटिविटी चाहिए है तो मतलब अधिक लेंथ पे कम पोटेंशियल आना चाहिए, मतलब के क्या होना चाहिए, कम, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट शुड बी लेस। समझ में आया। Yes, sir. हाँ, पोटेंशियल ग्रेडियंट लेस होगी। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट लेस करने के लिए ऊपर वाले वोल्टेज को छोटा कर दो या नीचे वाली तार बढ़ा दो। डन श्रुति, अरीना। Yes, sir, done. ओके Yes, sir. ओके बच्चों। हाँ, पढ़िए श्रुति। Write two possible reasons for obtaining deflection on one side in the experiment of potentiometer. The two possible reasons are as follows. First, if the EMF of secondary cell in primary circuit is less than the EMF of primary cell in the secondary circuit. Second, if positive terminals of all the cells are connected to the same point. हाँ, समझ में आ गया बच्चों की नहीं आया। सर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके बेटा, एक बार एक्सप्लेन कर। हाँ बिल्कुल पूछिएगा, ठीक ना। कोई भी डाउट हो तो तुरंत पूछिएगा, एक्सप्लेन करूंगा मैं। आपके पास ये कह रहा है बच्चों कि अगर आपके पास मान लो कि आप पोटेंशियोमीटर में ये आपका वायर लगा हुआ है जिस पे आप अपना पोटेंशियल बैलेंस कराते रहे हो, एक सेल ये लगता है, यहाँ पे जॉकी लगा करती है, गैल्वेनोमीटर यहाँ पे जॉकी से बैलेंस करते हो। अब आप इसको मूव करते ही जा रहे हो, बट आपका जो कांटा है वो मिडिल में नहीं आ रहा है, वो एक तरफ मूव कर रहा है, एक ही तरफ। वो मतलब इस पॉइंट के इस तरफ लाओ तो पीछे नहीं हो रहा है, इस तरफ लाओ तो आगे नहीं हो रहा है, एक ही तरफ मूव कर रहा है। इसके कारण क्या है, तो नंबर 1 कारण ये है कि आपने उल्टे लगा दिए हो, मतलब ड्राइवर सेल का वोल्टेज कर दिया हो 4 वोल्ट और टेस्टिंग सेल का ना कर दिया हो 10 वोल्ट। बोलो हाँ। हाँ सर। अब ये 4 है तो ये बेचारा इस लेंथ पे तो 4 ही देगा, 10 तो दे नहीं पाएगा। बोलो हाँ। हाँ सर। तो 10 को बैलेंस करने वाली लेंथ तो चाहे तुम यहाँ पहुंच जाओगे तो 10 के सामने 4 ही टकराएगा, 10 तो कभी नहीं मिलेगा, मतलब जीवन में ही बैलेंस नहीं होगा। बोलो हाँ। हाँ सर। क्लियर हो गया ना। दूसरा क्या है, दूसरा तरीका है, एक रूल होता है कि अगर ये वाला टर्मिनल प्लस है तो ये भी प्लस होना चाहिए, तभी बैलेंस होता है। तो आपने या तो इसको उल्टा कर दिया या उसको उल्टा कर दिया, तो कभी बैलेंस नहीं होगा। तो दूसरा क्या लिखा है, इफ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ऑल द सेल्स आर नॉट कनेक्टेड टू द सेम पॉइंट, मतलब सारे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल एक साथ कनेक्ट ना हो, कोई पॉजिटिव हो तो दूसरा कोई नेगेटिव हो। आया समझ में कि नहीं आया। यस सर। यस सर। डन। डन सर। चलो क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए। What do you understand by potential gradient of a potentiometer? Give its unit. Fall in potential per unit length is called potential gradient. If the length of wire be L and potential difference across the wire is V, then potential gradient K is equal to V by L. Its unit is volt per meter. डन। Done sir. डन सर। ओके, किसी को भी डाउट हो पूछिएगा प्लीज, है कहीं पे भी डाउट आए बता दीजिएगा। देन क्वेश्चन नेक्स्ट। The potential gradient of potentiometer wire is doubled. What will happen to its null point? Answer. Let EMF of cell E is balanced at the length of L. E is equal to KL, where K is equal to potential gradient, or L is equal to E by K. L is inversely proportional to K, hence the null point will be at the half of the length. हाँ, अगर K को आपने 2K कर दिया है तो बेटा जो नई लेंथ आएगी वो आएगी L डैश इक्वल टू कितनी हो जाएगी बेटा 1/2 L डैश इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/2K। बोलो हाँ। हाँ सर। तो हाँ, पुराना सर। वाला K था, नीचे वाला 2K है, तो बेटा ये जो लेंथ हो गई नई वाली क्या हो गई, हाफ हो गई ना पुराने वाले की। बोलो यस की नो।
Yes, sir. हाँ Yes, sir. मतलब अगर आपने पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है डबल करी है तो लेंथ क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। एनी प्रॉब्लम? No, sir. चलिए नेक्स्ट पढ़िए। Why the length of wire in potentiometer is more? हम्म For greater sensitivity, the length of null point should be greater, for which the potential gradient should be smaller. But potential gradient is K is equal to V by L. To decrease K, the value of L should be greater and V should be बिल्कुल smaller. सही। But the value of V can be decreased up to a certain limit, hence the length is increased sufficiently. समझ में आ गया? पूछो क्या दिक्कत सही है है, बेटा? but the value, K इक्वल टू वी बाई एल, बोलो हाँ। हाँ सर, अब आपको आप जानते हो कि पोटेंशियल ग्रेडियंट को आपको डिक्रीज करना अच्छी सेंसिटिविटी के लिए, बोलो यस और नो। यस सर, पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिक्रीज करने के दो तरीके, या तो V को घटाओ या तो L को बढ़ाओ, बोलो हाँ। हाँ ओके हाँ, सर। अब V को घटाना एक लिमिट से कम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपका टेस्टिंग सेल दिया होगा तो उसको तो उससे कम तो V को कर नहीं सकते हो, तो एक ही तरीका क्या बचा, L को बढ़ाओ। यस सर, आया समझ में? आ गया Yes, सर। sir. ओके चलिए नेक्स्ट पढ़िए। Proof that potentiometer is an ideal voltmeter. When the potential difference between 2 points is measured by the voltmeter, then same current passes through the voltmeter. सेम नहीं है Hence बेटा, it सम will- करंट है, ये गलती से सेम लिख दिया है। देन सम करंट Okay. पासेस थ्रू द वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर थोड़ी सी करंट खा के वोल्टेज ड्रॉप करा लेता है। मतलब जिस भी डिवाइस से करंट जाएगी अगर, तो हल्का फुल्का तो वोल्टेज वो भी ड्रॉप कराएगा, मगर पोटेंशियोमीटर में किसी प्रकार की करंट ही नहीं जाती, क्योंकि वो नल डिफ्लेक्शन पे काम करता है। समझ में आया ना? Yes sir. हाँ, इसलिए वो आइडियल है। पढ़ो आगे। Hence it measures little less than actual potential difference. But when potentiometer measures the potential difference between 2 points, no current flows through it. Hence it measures हम्म the accurate potential